Good afternoon, Amarveer. So today we will focus on the jump statements. So we have basically three jump statements. One is uh, break, second is continue, and third is pass. So we'll take up their examples also. Yes, yes. Good afternoon, Gulin. Good afternoon, sir. और पाइथन इंस्टॉल हो गई है? नहीं सर सर वही एरर आता है बार बार। उसको सर मैंने बहुत बार इंस्टॉल किया है, फिर उसको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर इंस्टॉल किया, होता ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, कल एक आधे दिन तक हम ट्राई कर लेते हैं एक ठीक है। न्यू अटेम्प्ट। So the today's topic is we'll start from the third part of the control statements is that is with the break statement. So before that, no, these three are part of jump statements. Jump statements are used to transfer the program's control from one location to another. So everyone is requested to keep your camera in the working mode. Pawandeep, Ishan, Kishore, Gurleen, and Muskan. So anyone can tell what is the topic after the control statements in the syllabus? What is the next topic that we have to start with? Make a guess. Use the mathematical formula hidden trial. Lists. List. Yes. तो लिस्ट में नेक्स्ट लिस्ट ही है.
यस महक, आपके सिस्टम पे है इंस्टॉल पाइथन? यस सर। गुड। सर पाइथन तो मेरे में भी है सर। हाँ तो बढ़िया है, फिर सर चलाते जाओ काम। तो जरूरी, जुपिटर नहीं है ना सर? हाँ तो जुपिटर होना चाहिए ना, दैट इज जुपिटर है, स्पाइडर है, दोनों में से एक तो इंस्टॉल होना चाहिए, that is। हाँ जी सर। So focusing on the this third part of the iteration statements, that is the jump statement. So here we have basically block of 3 statements: break, continue, and pass. So we'll focus on their working. So again, focusing on the what are the jump statements are used to transfer the program's control from one location to the another location. Means that these are used to alter the flow of the loop. So like to skip a part of the loop or to terminate the loop. Terminate के लिए तो break है, और skipping a part of the loop के लिए continue statements है. And third, we will also show the use of what is the use of this pass statement is there. So first focusing on the break statement. So we'll try to implement this one. Yes, this is there 107. So basically for the break we have for sequence में हमने ये string variable ले लिया, and then we will make use of the if value is equal to I, and use the colon here and try to print so before that we want to make use of this break statement. Here, so when the value variable will be equivalent to I, so you can put up here in the code brackets also like this, and try to run this one now. So the variable I is not identified. क्या इसमें कोई बता सकता है what is the error here? So we have to keep I in single or double quotes. Yes, to make it a string. ठीक है, so I is not defined because I अगर हम ऐसे ले लेंगे so now it has been converted into a string because यहाँ पे I जो है that is the part of the string. So you run this one. Clear? So अब क्या है हमारे पास आउटपुट क्या है? Clear? Yeah, we have a basically this for loop और VAL is working as a control variable, और इसमें इसकी starting value कहाँ से शुरू हो रही है? From S, then T, then R, then I, then N, then G. Clear? So first it is checking out if this variable value is equal to I. So initially its value क्या है? S. तो ये break statement because if इस if का जो पार्ट है दैट इज दिस ब्रेक ओनली, सो द कंट्रोल विल कम हियर प्रिंट, और वैल्यू में क्या प्रिंट हो जाएगा? दिस एस विल गेट प्रिंटेड एंड द कंट्रोल विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, एंड यहाँ पे फिर से फॉर लूप में क्या हो जाएगा? दैट इज द नेक्स्ट इज टी,
फिर से ये वैल्यू वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टी विल बी कंपेयर्ड विद आई, क्लियर, एंड दिस टी विल गेट प्रिंटेड, सिमिलरली द आर विल गेट प्रिंटेड, एंड नेक्स्ट टाइम द लूप विल कम हियर आई, सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी आई, एंड इसको हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, आई वेरिएबल के साथ, क्लियर, so then this break will be executed and the control will come out of the loop, clear, and we will have just str will get printed from the string. So break statement का use क्या होगा यहाँ पे, that is it transfers the control from the current block of statements, clear. तो जो हमने इसकी definition में पढ़ा था, you can focus on what this break means basically, clear, that is to skip a part of the loop or terminate a loop. तो इसमें क्या है, ये because we are working with the break, तो ये इसने क्या कर दिया, this has terminated the current for. So this is the use with regard to break statement, and next we will move to the next is we have a continue statement. तो continue statement में क्या है, that is it is used to skip all the remaining statements in the loop and move to the control back to the top of the loop. तो इसमें क्या है कि जो continue के बाद जितनी statements आएंगी they will be skipped and the control will be transferred to the top of the block. So उसी प्रोग्राम को हम करके देख लेते हैं. Now we will use it with the, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ब्रेक की जगह यूज कर देते हैं now continue, चलिए कंटिन्यू के बाद कौन सी स्टेटमेंट है, प्रिंट है, तो इसमें क्या है, आई की प्रिंटिंग स्किप हो जाएगी, क्लियर, एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल गेट प्रिंटेड, क्लियर. सो दिस इज आवर फर्स्ट, एस विल गेट प्रिंटेड, देन टी, देन आर, एंड व्हेन द वेरिएबल ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज आई एंड आई बोथ आर बेसिकली इक्विवेलेंट, तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो कंटिन्यू का पर्पस क्या है कि इसके बाद वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, मींस ये प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी एंड कंट्रोल विल बी बैक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक, क्लियर, एंड देन द n and g will get printed. So this is how the continue statement works. It basically what it does, it skips the statements which follow the continue statement and it transfers the control to the top of the block. Now moving to the last, that is the pass. ठीक है, पास का कोई पास को कोई बता सकता है पास के बारे में, जैसे हम क्वेश्चन पास कर देते हैं ना, द सेम वे द पास वर्क्स, क्लियर. Try to compare when I ask a question and someone doesn't answer, so that is the pass statement basically. So see here what is the pass statement is, this statement does nothing, so iska kaam hai it does nothing, clear. But still we can take certain values from this statement also. It can be used when a statement is required syntactically but the program requires no action. तो ये है इसका मेन, इसका यूज है, that it can be used when a statement is required. तो जब हमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत है बट उससे प्रोग्राम में कुछ उसका इफेक्ट ना हो उसके अंदर, क्लियर, कोड वाइज उसका कोई इफेक्ट ना हो, जैसे हमारी ऑब्लिगेशन है कि सिंटैक्टिकली चीज करेक्ट होनी चाहिए, तो वहां पे हम पास का यूज कर देंगे, बट द प्रोग्राम रिक्वायर्स नो एक्शन. पास के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट. जैसे ब्रेक के ऊपर जब ब्रेक एग्जीक्यूट होती है तो एक्शन क्या होता है, दैट द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. सिमिलरली जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होती है तो क्या करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, यस गुरलीन. सर जो अभी स्टेटमेंट रन हो रही है वो उसको स्किप कर देता है सर. हाँ, जो कंटिन्यू के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स है उसको स्किप करके इट विल ट्रांसफर द कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द स्टेटमेंट, टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक. बट पास में क्या है कि पास इट कैन बी यूज्ड व्हेन a statement is required syntactically but the program requires no action. जैसे हम अगर हमने लूप के अंदर इसका यूज करना है, सो विल टेक इट्स एग्जांपल, सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गिवन हियर. जैसे ये है हमारे पास पास स्टेटमेंट, तो इसमें पास का कैसे यूज किया हुआ है, जैसे ये फॉर लूप है, सो फॉर आई इन इनिशियल,
तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल आई है हमारा, और ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर? और अगर आई की वैल्यू आई है, क्लियर, द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज आई, सो देन क्या करना है, पास करना है। सो पास मींस कोई एक्शन नहीं लेना इसके ऊपर, ठीक है। एंड अगर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू आई नहीं है, सो देन उसको हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेरिएबल में जहां जहां पे आई की वैल्यू आएगी वहां पे कुछ भी एक्शन नहीं लेना, ठीक है। और जहां जहां पे उसकी वैल्यू आई के अलावा है, क्लियर, सो दैट वी हैव टू, दैट वैल्यू वी हैव टू प्रिंट। एंड यू कैन सी इन द आउटपुट पार्ट आल्सो कि आई के अलावा क्या है, बाकी सारे जो हैं कैरेक्टर्स दे आर गेटिंग प्रिंटेड हियर। क्लियर? सो वी कैन ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस वन आल्सो। तो फॉर वही एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर आई इन इनिशियल, ठीक है। तो इफ the value of the control variable is equal to I, and then we have to just pass means do nothing now, clear. And in the else part you have to print the value of the control variable I, clear. So you can see in the output part that the value of I is getting printed because initially इसकी वैल्यू क्या होगी I, so I is equal to I means ये बस यही एक्शन करना है, पास एक्शन। जैसे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं विदाउट रिस्पोंडिंग ऑन एनीथिंग यस और नो, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। सो सिंटैक्टिकली बिकॉज नो इफ ब्लॉक के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो रखना है हमें, अगर इफ ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो ये यहाँ पे पास क्या काम कर रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पे पास का रोल क्या है? What function the pass value is doing there? सर वो एक कोड जैसा बन जाता है सर। कोड जैसा बन, यस जैसे इफ के अंदर सर हमने कुछ लिखना पड़ता है ना सर, तो वो उसकी जगह ले लेता है सर। यस Bhavya want to say something on this? Sir, it acts as the body of the statement. yes तो बेसिकली क्या ये if की बॉडी बन गया, बिकॉज इफ ब्लॉक के अंदर भी तो कोई ना कोई जैसे ये इफ स्टेटमेंट किस तरह की इफ स्टेटमेंट है, इसके दो ब्लॉक्स हैं, वन इज द ट्रू ब्लॉक एंड सेकंड इज द फॉल्स ब्लॉक। तो ट्रू ब्लॉक के अंदर अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये क्या करेगा, नो वी रिक्वायर समथिंग टू बी द पार्ट ऑफ द ट्रू ब्लॉक। तो ट्रू ब्लॉक में हमने क्या कर दिया, ट्रू ब्लॉक में हमने पास वैल्यू डाल दी जिसके ऊपर मींस इट हैज टू डू नथिंग, क्लियर। एंड मींस कि ये आई की वैल्यू ऐसे ही द कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू n, तो फिर n प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद आई आ गया तो आई को फिर ये क्या कर देगा, पास मींस डू नथिंग, देन इज दी t आ जाएगा, तो सो t विल गेट प्रिंटेड हियर बिकॉज now t is not equal to I, तो the value of t will get to the else part and t will get printed, then similarly a and l will get printed। तो pass यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, that is it is used to fill the part of the true block, ठीक है। तो ट्रू ब्लॉक का काम कर रहा है एंड इट इज डूइंग, इसका जो काम है मींस टू डू नथिंग, क्लियर। सो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे हम क्लास के अंदर नो व्हेन वी अटेंड ए क्लास एंड वी डोंट वांट टू रिस्पोंड बैक टू एनी क्वेश्चन क्वेरी बीइंग आस्क्ड, सो वी से दैट सर हमें इसका पता नहीं है, सो मींस वी आर वर्किंग ऑन द पास मैकेनिज्म, क्लियर। सो next we have is the list. Now next we will focus on yes, so Gurleen has a query here. सर ये पूछना था, अगर हम पास की जगह कंटिन्यू लगाए तो फिर एरर शो करेगा वो? क्या पास की जगह क्या लगा देंगे? कंटिन्यू सर। पास के आगे कंटिन्यू लगा लो आप। नहीं पास को काट के फिर हम कंटिन्यू लिख दें वहां, फिर सर फिर क्या करेगा, फिर कंटिन्यू को वर्डिंग चलना शुरू कर देगा।
तो फिर कंटिन्यू में भी आई स्किप होगा और पास में भी आई स्किप हो रहा है। हाँ, दोनों में सेम आउटपुट आ जाएगी हमारी। सर फिर फर्क क्या हुआ सर? फर्क देखोगी, फर्क क्या है इसके अंदर? आप बताओ। अब ये देखो इसके अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है। यू गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये यूज किया था, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट। हाँ जी सर। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे पास करने लगा हूं। अब इसकी आउटपुट नजर आ रही है? हाँ जी सर। डिफरेंस भी पता चला या नहीं चला? हाँ जी सर, एक बार सर सेकंड वाला दिखाना नीचे वाला। पहले ये फर्स्ट वाला देख लो अच्छी तरह से। यस, नाउ वी विल शिफ्ट द क्वेश्चन। ये मतलब अकेला गुरलीन नहीं है क्लास में, सो वी विल शिफ्ट द क्वेश्चन। यस मन्नत लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पास कंटिन्यू की जगह पास स्टेटमेंट का यूज कर दिया यहाँ पे, इन दी फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की थी। सो यहाँ पे पास क्या काम कर रही है, क्या डिफरेंस क्या हुआ? सर जैसे उसमें लाइक इनिशियल में आई स्टार्टिंग पे था, हाँ तो अभी शायद हाँ और बताओ। तो वो शायद एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी आ रही है। यस सर थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। विल ब्रिंग इन समवन एल्स। यस महक आप बताओ। यस सर। यस सर के आगे आप आंसर करना है। यस सर, मैंने तो क्वेश्चन बोल दिया। सर कंटिन्यू जब हमने लगाया था तो वो इफ वाली स्टेटमेंट उसने उसके साथ कोई प्रिंट नहीं किया था, उसने प्रिंट नहीं किया था। तो अब मैंने पास लगा दिया तो उससे क्या लेकिन हो जब रहा है? पास लगाया सर आई प्रिंट हो रहा है, वो कुछ हाँ नहीं, पास इस का कोई केस में काम क्या नहीं है इधर। बेसिकली पहले यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट था, तो कंटिन्यू का काम था कि कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट पास तो ऐसा बेचारा कुछ भी नहीं करता। पास तो उसको पास करके बोलता है कोई बात नहीं भाई, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने, पास कर दिया, बट आई विल गेट प्रिंटेड हियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पास एंड द कंटिन्यू। क्लियर? सो एनीवन एल्स हु वांट्स टू एलैबोरेट ऑन दिस? Yes, Ishan will bring in Mr. Ishan here. So Ishan, आप भी इसको करो explain. What is the difference generated here? तो जब हम कंटिन्यू यूज कर रहे थे, जो इफ स्टेटमेंट थी वो रन हो रही थी, तो कह रही थी कि जो वैल्यू जब आई आएगी तो वो प्रिंट नहीं करनी, तो कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन अब पास कर रहे हैं तो बेसिकली हम कह रहे हैं इफ स्टेटमेंट खाली पड़ गया तो आई प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली पास का काम ही यही है, दैट इज टू डू नथिंग ना। सो here there is no value significance of using the pass here. Clear? So there is a difference, like Gurleen has asked about the difference between जो सेकंड सिनारियो है, सेकंड सिनारियो में ब्रेक और पास और कंटिन्यू ऑलमोस्ट सेम रोल प्ले कर रहे हैं इन दी सेकंड सिनारियो। नाउ वी मूव टू दी सेकंड सिनारियो हियर। क्लियर? यहाँ पे कंटिन्यू और पास बोथ आर डूइंग द सेम सॉर्ट ऑफ ए टास्क हियर। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू के बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू लगाने का तो कोई फन नहीं है, बिकॉज कंटिन्यू के बाद तो कुछ है ही नहीं है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंटिन्यू का पर्पस क्या होता है कि कंटिन्यू के बाद स्टेटमेंट को स्किप करो। कंटिन्यू के बाद तो कुछ है ही नहीं। इज देयर समथिंग आफ्टर कंटिन्यू? सेकंड केस में अगर हम कंटिन्यू लगा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग इन कंटिन्यू? सो इट इज बेटर दैट टू पुट पास्ट स्टेटमेंट हियर टू डू नथिंग। पास का काम है टू डू नथिंग हियर, तो दैट इज मोर रेलेवेंट स्टेटमेंट हियर इज पास। कंटिन्यू का काम होता है कि कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप करो, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? सो इन द सेकंड सिनेरियो देयर इज नो फन ऑफ बेसिकली यूजिंग द कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू के बाद कुछ है ही नहीं तो हम कंटिन्यू का यूज क्या कर रहे हैं? सो इन द सेकंड सिनेरियो कंटिन्यू का आउटपुट दोनों की सेम आएगी, चाहे आप कंटिन्यू यूज कर लो चाहे आप पास यूज कर लो। देयर इज नो डिफरेंस इन दी आउटपुट,
बट कंटिन्यू वहां पे कुछ काम नहीं कर रहा, हम कंटिन्यू का यूज भी करवा लिया हमने, बट कंटिन्यू का पर्पस क्या होता है? यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। यस नवदीप, बताओगे कुछ कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में? हाँ जी सर। हाँ, तो मेरे को लगता है तू कंटिन्यू में भी पास का यूज करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट सर। हाँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट में तू पास्ट स्टेटमेंट का यूज कर देगा। यस अजय प्रताप। यस ओके ओके फाइन। नाउ अजय प्रताप। So what is the question? क्लास के अंदर एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है, व्हाट इज द क्वेश्चन इज। यस मन्नत, आप बताओ क्या क्वेश्चन है बेसिकली। कंटिन्यू पास में डिफरेंस क्या है? हाँ, कंटिन्यू और पास में डिफरेंस क्या है? और इन द सेकंड सिनेरियो वी आर सेइंग दैट इन दिस सेकंड सिनेरियो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देंगे तो कंटिन्यू मींस कि उसके बाद वाले पार्ट को स्किप करना है हमें, तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज एल्स वाला पार्ट जब इफ यूज होगा तो एल्स वाला पार्ट तो कभी यूज होगा ही नहीं उस केस में। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी वांट टू बेसिकली एम्फसाइज द डिफरेंस। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट्स में जो डिफरेंस है कि पास का बेसिक रोल डिफरेंट है, कंटिन्यू का बेसिक रोल डिफरेंट है। क्लियर? बट एट दिस पॉइंट दोनों से आउटपुट हमें एक तरह की आएगी। दैट इज द सिनेरियो वी आर फेसिंग। यस हाँ गुरलीन, थोड़ा हुआ क्लियर या नहीं? हाँ सर थोड़ा बहुत हुआ, मुझे समझ आई एल्स ने सर सारा चक्कर डाला है सर। एल्स ने चक्कर डाल दिया है, कोई बात नहीं। सो हाँ जी प्रोग्रामिंग में यही है, दैट इज नो हर कोई देखो, जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। हम उस चीज को डिफरेंट वे से हमारी परसेप्शन एक तरह की थोड़ी, मैं जो समझा रहा हूँ आप प्रोग्राम को डिफरेंट वे से ले रहे हो, हर कोई स्टूडेंट इसको डिफरेंट वे से ले रहा है। ये तो हमारे मतलब कि मैकेनिज्म के ऊपर है कि हम हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। और जैसे फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वो पास का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं कि बढ़िया भाई, पास स्टेटमेंट भी तो है क्यों ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर ही फोकस करना है? वी हैव ए थर्ड स्टेटमेंट पास, तो जहां कहीं फंस जाओ वहां पास कर दो एंड शिफ्ट द क्वेश्चन टू समवन एल्स। सो नाउ this is the next agenda we have, that is the list now. Clear? So list is another very important data structure we have, data types में। तो list is a collection of items and each item has its own index value। तो एक हम इंडेक्स जो लिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड डाटा टाइप। तो और जब भी हम ऑर्डर्ड की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली दिस इंडेक्स शुड कम इनटू माइंड। क्लियर? तो the elements of the list can be accessed from this index। और इंडेक्स के बारे में this PPT is showing जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, that is we most of the times we focus on the this positive indexing only, 0 1 2 3 4, and here in the below part you can see here the negative index। ठीक है, कि राइट हैंड साइड से जो वैल्यू शुरू होगी फ्रॉम -1 then -2 -3 -4 and -5। So this is a very important aspect with respect to the index। The negative index कहाँ से शुरू होगा? right most से शुरू होगा and it will start from -1 to it will keep on going how many values we have। Clear? And these are the values inside the list। और list के अंदर जो एक और important चीज है, that is we can put up the heterogeneous values। जैसे इसमें तो सारी integer values डाली हुई हैं, but we can have heterogeneous values। So heterogeneous values means in the next slide you can see here, जैसे ये list 1 है तो list 1 के अंदर first value है, this is string value and next we have 2 integer values। So this list 1 is containing basically elements of different types। इनकी data type क्या है? same नहीं है सारे elements की। So how we create a list? So for creating a list we are using this square brackets and each item is separated by comma। So you can see here this English is acting as a one item, then this other item is separated by a comma। So the elements in list are separated with the help of this comma। List 2 में, so say something about the list 2। Who will say?
यस अजय प्रताप बताओ, कुछ भी एक्सप्लेन करो आप लिस्ट 2 के बारे में, वट एवर यू वांट टू से अबाउट लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 2 दिखाई दे रही है? हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिस्ट 2? यस सर लिस्ट 2 के बारे में। हाँ हाँ सर लिस्ट 2 में सारे इंटीजर नंबर है। हाँ, तो लिस्ट 2 में सारे इंटीजर एलिमेंट्स हैं। ऐसे लिस्ट 3 के अंदर क्या है, वी हैव ऑल दी कैरेक्टर वैल्यूज ए बी सी डी इन लिस्ट 3। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें ब्लैंक लिस्ट चाहिए, क्लियर ब्लैंक लिस्ट क्रिएशन, सो वी जस्ट मेक यूज ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो इट मींस दैट वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट बट इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ए blank list. Now the next is basically accessing the elements of a list. So access elements from a list. तो क्या है हमारे पास? We have these are the elements of the list. ठीक है, लिस्ट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 3, 5 एंड 9। तो लिस्ट 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 की इंडेक्स वैल्यू 0 है, सो हमारे पास एलिमेंट्स कौन सा आ जाएगा? 3। सिमिलरली लिस्ट 1 से, सो लिस्ट 1 इज, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं? इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो 5 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 1। सो अगर हम ऐसे लिखेंगे, सो वी विल गेट 5 एज ए आउटपुट। सिमिलरली 9 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 2। सो लिस्ट 2 यू विल गेट हियर 9 एज ए आउटपुट। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करेंगे, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमने डिस्कस किया था कि अभी 9 की राइट मोस्ट जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है -1, नेक्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू है -2 एंड 3 की इंडेक्स वैल्यू है -3। सो द सेम एलिमेंट्स वी कैन प्रिंट बट नाउ विद द नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू। क्लियर है ये? यस नवदीप, क्लियर है ये नेगेटिव इंडेक्सिंग? पवनदीप सिंह, पवनदीप, अभिनंदन, तरुणजोत, now the next thing, traversing through a list. So traversing means what is we meant by the term traversing? We have already discussed this term earlier also. Yes, anyone wants to say something on this traversing? So 2 participants we have now. Yes, हाँ मन्नत आप बताओ traversing। सर इसका मतलब ऐसे हमने एलिमेंट्स एक्सेस करने हो लिस्ट से अलग अलग टाइप के। हाँ एक सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना हो। एक्सेसिंग ईच एलिमेंट्स वंस इज बेसिकली दी ट्रैवर्सिंग इज, ठीक है। जैसे लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं तो एक एक करके जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज द ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। तो जैसे ये हमारे पास लिस्ट है तो उसको हमने रेंज फंक्शन से स्टार्टिंग विद द इंडेक्स वैल्यू 0 टिल द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन लगा दिया? लेंथ फंक्शन लगा दिया ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। तो उनकी इंडेक्स वैल्यू से हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे? एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रैवर्सिंग यूजिंग ए लूप। क्लियर? बिकॉज यहां पे हमने लूप का कंसेप्ट, व्हाई वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ लूप हियर? लूप का कंसेप्ट क्यों यूज किया हमने? यस यू कैन सी इट अगेन। Traversing में why we have used the concept of loop here? So other than, yes, Shriya wants to say something here. So here we have used the length function
and we have started the loop from 0 to length, means the number of elements the list have. So on 0 it will print the index value of 0, that is 3. Then next it will print 5, and then next it will print 9. So it is printing each and every element of the list. Yes, yes, good. So basically, why we have used the concept of loop here is the simple answer is कि हमारे लिए repetitive task है, पहले एलिमेंट को एक्सेस करना, फिर दूसरे को करना, फिर तीसरे को करना, फिर फोर्थ को करना, फिफ्थ को करना. So what was the basic purpose of a loop was clear, to basically repetitive task है, clear, because इसमें हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं और उनको प्रिंट कर रहे हैं. तो लूप का पर्पस यही है कि जिसमें हमारे पास रेपिटेटिव टास्क है, ऑल दोस टास्क वी पुट इनटू ए लूप. सो दैट्स व्हाई द लूपिंग इज हेल्पिंग हियर. सो द नेक्स्ट इज slicing. So who will explain this concept, slicing? I will show you the slide, and who will take the initiative in answering? Bhavya is ready. No, Shriya is ready. I will show you the slide. यहाँ से स्लाइड से आपने बताना है ये, बिकॉज मेरे लिए भी ये रेपिटेटिव टास्क हो गया. सो आई विल ब्रिंग इन समवन हु इज द सॉर्ट ऑफ ए रेडी सॉर्ट ऑफ ए मोड हियर. Yes, so maybe the last topic of the day. So we have Mehak and Bhavya in the ready mode. So yes, Mehak, आप बताओ. Yes, I am opening this slide. Yes, now. So slicing is basically a process of assessing a part of the list. Yes, yes. And how we have used it For here? example, sir, on the basis of index value, we have assessed the elements. Yes, yes. जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एग्जांपल. सर फर्स्ट एग्जांपल में हमें स्टार्ट वैल्यू दी है और स्टॉप वैल्यू दी है. हाँ. तो सर फर्स्ट 0 से लेके 3 तक हमने जो. हाँ, ठीक है. यस सर. ठीक है, 0 से लेके 3 एक्सक्लूड हो जाएगा. सेकंड को एक्सप्लेन करो. सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें स्टार्ट वैल्यू दी है, तो जिसकी इंडेक्स वैल्यू 3 है वहां से स्टार्ट होके हमें लास्ट तक प्रिंट करना है. ठीक है, ठीक है, बिकॉज नो एंड वैल्यू इज मेंशन्ड हियर. ओके, एंड इन द लास्ट वन? और लास्ट वन में हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमें सारी हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव द स्टार्ट वैल्यू एंड द स्टॉप वैल्यू, एंड आल्सो द थर्ड पैरामीटर इज द स्टेप वैल्यू. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है दैट इज इंक्रीमेंट, एक की इंक्रीमेंट होगी इसमें. सो स्लाइसिंग मींस दैट इज द पार्ट ऑफ the list we want to print here. Clear? So that is what we meant by the term slicing. Now the next two operations we have updating and manipulating the list. So updation operation कौन बताएगा? What is the updation operation is? क्या होता है updation operation? We use the same updation operation in database also. Who will take the lead? So again Bhavya is ready. Yes, Bhavya. सर अपडेशन में तो यही होता है कि पुरानी वैल्यू को हमने चेंज करके नई वैल्यू देनी है. तो लिस्ट में इट इज लाइक लिस्ट ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू जो हमने चेंज करनी है और इसकी इक्वल टू वैल्यू जो हमने न्यू वैल्यू रखी है. So जैसे यहाँ पे क्या है, that is that is we have updated here the values, like here the example is list 2 to 3. So here the values are only one value will get updated here, that is the list. यहाँ पे कौन सी वैल्यू अपडेट होगी? 2. लिस्ट 2 में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है अभी हमारे पास? वी हैव दिस 0, 1 and 2. दिस इज दी 199 1997 है इसके अंदर अभी वैल्यू पड़ी हुई. तो इस स्टेटमेंट से कोई बता सकता है इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट आएगी? स्टेटमेंट दैट आई हैव बेसिकली सिलेक्टेड द स्टेटमेंट. अदर देन Bhavya, now we will ask someone else.
यस हर्षिता, यस हर्षिता, जिसको मैंने ये सिलेक्ट किया है पोर्शन, इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। हर्षिता इज रेडी और नॉट? Yes, yes. So who else is ready? Yes, Gurleen. हाँ जी, सिंपल है। क्या कहते हैं वहाँ सर हमें पहले इंडेक्स वैल्यू हमें दी है कि कहाँ हमने उसको ऐड करना है 2001 और 2002 को। तो उन्होंने 2 इंडेक्स वैल्यू दी है। तो इंग्लिश 0 हुआ, हिंदी फर्स्ट हुआ और 1997 सेकंड हुआ। फिर उसके बाद हमने ये 2 वैल्यू ऐड कर देनी है। इसमें 2 उसके बाद वैल्यू 2 अपडेट वैल्यू होगी आ या गई। एक अपडेट होगी या 2 वैल्यू अपडेट होगी? सर दोनों वैल्यूज आ जाएंगी ना सर वहाँ। दोनों वैल्यू अपडेट हो सर जाएंगी। एक 2001 की 2000 जो 1 है वो 1997 पे आएगा, फिर उसके अगले 2002 आ जाएगा, उसके आगे फिर उसके आगे आएगा 2000 जैसे। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। यस, समवन एल्स हु वांट्स टू कम इन हियर? आंसर भी इसका आपके सामने लिखा हुआ है। आई नीड नॉट टू बेसिकली गिव द एलाबोरेटेड आंसर हियर। यस श्रिया, this So is please show the screen also. So we are given the 2 indexes, that is 2 and 3. Means 1997 is at second index. So only one value will be added or updated because we are not using append function here with the list. Basically जब भी हम ऐसे when we are accessing the elements in this format ना, जिसमें हमारे पास ये है this is the lower limit, this is the upper limit. I have told you many times the upper limit will not become the part of this way. Clear? Only list 2 means list 2 जिसकी index value है 1997, this will get updated. The second element access ही नहीं होगा, so how this will get updated? तो साथ में आंसर भी लिखा हुआ है इसका, the list 2 means जिसकी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 2 है उसकी वैल्यू 2001 हो जाएगी। मींस ये 1997 will get replaced with 2001 for a single item update। तो इसमें एक ही आइटम अपडेट होगी, 2 आइटम अपडेट नहीं होंगी इस सिनेरियो के अंदर। सो वी हैव टू कीप ऑन, जैसे जो भी हमने प्रीवियस चीज पढ़ी है, सो वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग विद दिस वन। yes anyone else? Yes Bhavya. Sir, I have a doubt. In the output, in the last statement, printing the last statement, new value available at index 3, then list bracket में 3, उसकी value 2002 लिखी है। हाँ, तो इसको करके देख लेते एक बार। नहीं सर, बढ़िया है। दैट इज नो दी, वहां पे एक्सप्लेनेशन तो इसकी डिफरेंट लिखी हुई है एंड द आंसर इज बिट डिफरेंट। क्या था हमारे पास? दैट इज लिस्ट है हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी, second value was Hindi, so the operation is that we have इसको ट्रवर्स करके देख लेते हैं। फॉर
So must be now what is the problem now? Range, अच्छा ये हमने ये ठीक है। So 2003 and 4 the both value will get updated, और दोनों बेसिकली क्या है, दोनों वैल्यू क्या है वो सेकंड वो बेसिकली इसी लोकेशन के ऊपर जा रही हैं दोनों, बोथ वैल्यूज 3 and 4, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू जा रही है, फिर ये 2004 जा रही है, बिकॉज दैट्स व्हाई दिस इज नॉट गेट अपडेटेड। वो पुरानी वैल्यू वहीं पे है लिस्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर ये साइमल्टेनियसली ये भी अपडेट हो जाती तो फिर ये वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए थी यहाँ पे इन दी अपडेट ऑपरेशन। यस भव्या, clear now. ठीक है। तो बेसिकली नो इस लोकेशन के ऊपर ही दोनों वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू इज दिस 2003, फिर उसके ऊपर उसी लोकेशन में आ रही है 2004। क्लियर? 200 जो 2000 है दैट इज इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है ये है, इस लिस्ट में क्या थी 0 1 2 and 3। तो 2 and 3 साइमल्टेनियसली रिप्लेस नहीं हो रही, सिर्फ इसी वैल्यू के ऊपर पहले आ रही है 2003, फिर उसी लोकेशन में आ रही है 2004 and 2000 is basically intact here. So the best way to answer here is that is if you run this one, अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखोगे, so you can see here in this one also, तो इसका आंसर सही है, इसका आंसर भी सही है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन है that is list to 2001 for a single item update। तो सिंगल आइटम अपडेट हो रही है, बट इसके साथ ये 2002 भी जाई जा रही है इसके साथ, ठीक है। That's why we are getting this as a output. Yes, Shriya is having some question. Sir, on second index value, will 2001 also come and 2002 also will have the same value of index? कहाँ पे? सर इस एग्जांपल में जैसे 2001 and 2 को उन्होंने ऐड किया है ना, तो उन दोनों की सेम इंडेक्स वैल्यू होगी? नहीं, इंडेक्स वैल्यू तो डिफरेंट बन जाएगी इनकी, अब अपडेट हो जाएगी इनकी इंडेक्स वैल्यू। नो, जैसे आप यहाँ पे देखो, अब इसकी इंडेक्स वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। इसकी इंडेक्स वैल्यू है, इंग्लिश की इंडेक्स वैल्यू है 0, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4। सो दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बढ़ गए। पहले लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, अब लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, सो डेफिनेटली देयर इंडेक्स वैल्यू विल आल्सो गेट चेंज। ओके सर, ठीक है। सो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था। क्लियर? So now the best way to basically is that you practically do this one and you will having a more clarity on this. So we will continue from the list onwards in the next lecture also. So anyone is having any other question? Okay now. So thank you, brother. Thank you everyone for. Thank you, sir. Thank you. thank you sir. Thank you, sir. Thank you.